Hi students, welcome again in my YouTube channel. Today I will start trigonometry again. This is my third lecture. I start trigonometry class 11th. So whatever the question today I will do, this will be totally based on your formulas that you have to learn first, then you can understand it easily. So without any देरी करें स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और आप इसे ध्यान से देखें. 100% ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू और देखते रहिए मेरे 1 by 1 वीडियोस एंड आपका सब कुछ क्लियर होता रहेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट क्वेश्चन वेरी बेसिक क्वेश्चन. जैसे आपको sin 30, sin 45, sin 60 और कल हमने पढ़ा था कि एलाइड एंगल्स पर भी sin cos tan आपको पता है. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एट शुगर टू कॉफ़ी बड़े सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे आपने कल. आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ sin cos tan एट 18 डिग्री, 36 डिग्री, 72 डिग्री, 54 डिग्री एंड 22.5 डिग्री. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम्स एंड अगर ये याद रहे तो कैलकुलेशंस विल बी वेरी इजी. अदरवाइज यू कैन फाइंड इट. तो व्हाट आर द मेथड टू फाइंड देम आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको 18 डिग्री पे बताता हूँ हाउ कैन बी फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एट 18 डिग्री. So as you know, if theta is 18 degree, so 5 theta will be 90 degree. So you can write 2 theta is equals to 90 degree minus 3 theta. This implies taking sine on both sides. Sin 2 theta is equals to sine 90 degree minus theta. And sin 90 minus anything is cos of that. This is the formula. And it is sin 2 theta here. Now दोनों तरफ आप फार्मूला लगा ले. sin 2 theta का फार्मूला होगा 2 sin theta cos theta. This is into here. Cos 3 theta is 4 cos cube theta minus 3 cos theta. इस सबको उधर ले जाओ. So you get this implies cos cube theta minus 2 sin theta cos theta. एंड अगर ये उधर जा रहा है तो माइनस हुआ और ये तो माइनस ही रहेगा. 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0. cos थीटा कॉमन ले लो. सो यू कैन राइट दिस cos थीटा इनसाइड ब्रैकेट 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इंप्लाइज या तो cos थीटा 0 होगा या फिर 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin theta minus 3 will be 0. But as you know, cos theta cannot be 0 because theta is 18 degree. So this is not possible. Not possible as theta is equals to 18 degree. So इसका मतलब अगर ये 0 नहीं हुआ तो 100% ये 0 होगा. So therefore 4 cos square theta minus 2 sin theta माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. इसे सॉल्व करके साइन या कॉस निकालना चाहेंगे हम. इसको अगर मैं कॉस में खोलूँ तो रूट आ जाएगा, लेकिन इसे खोलूँ तो साइन आ जाता है इजीली. सो वी गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज 0. फर्दर इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट 4 साइन स्क्वायर थीटा राइट साइड plus 2 sin theta right side and 4 minus 3 is 1, so minus 1 is 0. We cannot factorize this quadratic equation in sin theta, so we'll use quadratic formula. You know the quadratic formula which gives us sin theta is equals to minus b plus minus under root b square 2 to the 4 minus 4ac 4 into a 4 into c is minus 1 होल अपॉन 2a 2 4 जा a. अगर इसे हम सॉल्व करते हैं सो वी गेट माइनस 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 2 रूट 5 अपॉन 8 एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4. दिस इज साइन. सो
one of the value of sin theta here is -1 plus root 5 by 4, another is -1 minus root 5 by 4. एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, and you know that sin theta is sin 18 degree. Since 18 degrees lies in first quadrant, so it must be positive. So therefore, I can write here, therefore sin theta यानी कि sin 18 degree is equals to जो उसका प्लस वैल्यू यानी -1 plus root 5 by 4 या root 5 minus 1 upon 4. So this is the value of sin 18 degree. So sin 18 is this. Just by using this sin 18, we can find cos 18. You can see here, cos 18 degree is equals to 1 minus sin square. 18 degree will be in square root. Just solve it. So 1 minus root 5 minus 1, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं. So 5 plus 1 minus 2 root 5 upon 4 4 जो 16 पूरे का स्क्वायर रूट. इसे अगर सॉल्व करते हो तो 16 minus 6 यानी कि 10 plus 2 root 5 का स्क्वायर रूट upon 4. So this is cos 18. अगर अब tan 18 अगर आपको निकालना है तो आप लिख सकते हैं sin 18 डिवाइडेड बाई cos 18, और अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो यू गेट न्यूमरेटर इसका root 5 minus 1 upon 10 plus 2 root 5. This is tan 18. So sin cos और tan 18 आपने देख लिया. sin 18 डिग्री जो होता है ये cos 72 के बराबर होता है, यानी कि cos 72 भी क्लियर है आपको. ऐसे ही ये cot 72 है, cot 72 डिग्री, और ये sin 72 डिग्री है, sin 72 डिग्री. सो sin 72 और cos 18 ये है, tan 18 cos 72 डिग्री ये है, cos 72 sin 18 ये है. So 18 and 72 are clear on all these angles. अब अगर sin cos tan पता हो तो इनके रेसिप्रोकल यानी cot sec cosec भी निकाले जा सकते हैं just by reversing them, just by inversing them. अब देखते हैं हम यही एंगल जो हमने अभी 18 का पढ़ा. अब अगर 36 डिग्री पर पूछता है कोई हमसे, सो हाउ कैन वी इवैल्यूएट साइन 36 डिग्री या कॉस 36 डिग्री. सो सबसे पहले हम कॉस निकाल लेते हैं. कॉस 36 डिग्री को आप लिख सकते हो कॉस 2 इंटू 18 डिग्री. cos 2 थीटा का फार्मूला लगा लेते हैं इसमें. 2 cos स्क्वायर 18 डिग्री minus 1. This is formula for cos 2 theta, and this will be 2 into, अभी हमने पढ़ा था 10 plus cos 18 डिग्री. जो भी आया था एक काम कर सकते हो आप, इससे साइन निकाल लो sin 18. सो 1 minus 2 sin स्क्वायर 18, जो याद हो वो यूज कर लो 18 डिग्री. सो दिस इज इक्वल्स टू 1 minus 2 sin स्क्वायर 18 यानी कि रूट 5 minus 1 upon 4 का स्क्वायर. सो दिस इज 1 minus 2 upon 16, 6 minus 2 root 5, 2 8 is 8 minus 6 plus 2 root 5 upon 8. So this is root 5 plus 1 upon 4. This is cos 36 degree. So अब इसमें अगर हम फार्मूला यूज करते हैं sin 36 के लिए, so this will be under root 1 minus sin square 36. और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली मेरे को क्लियर है कि ये आ जाएगा this upon 4. और मैं आपको बताऊंगा अगर sin 36 क्लियर हो
तो ये cos 54 होगा बिकॉज दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट। cos 36 है ये sin 54 होगा। और अगर sin और cos दोनों 36 पर क्लियर है, सो वी कैन फाइंड tan, वी कैन फाइंड cot, इसे देखकर वी कैन फाइंड cosec, इसे देखकर वी कैन फाइंड sec। तो सारे एंगल सिर्फ 36 पर नहीं बल्कि 54 पर भी हमको क्लियर हो गए। 54 डिग्री पर वी कैन फाइंड sin cos tan all। एक और एंगल मैं आपको बताता हूँ 45/2 यानी 22.5 डिग्री। देखते हैं अगर हमारा एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री बाई 2 हो, या इसे आप कह सकते हो π/8 या इज इक्वल्स टू 22.5 डिग्री। इन पर अगर हमें निकालना हो sin cos tan, हम कैसे निकालेंगे? तो वी हैव अ क्वेश्चन हाउ टू फाइंड tan π/8, how to find sin π/8, how to find cos π/8. So you can see, देखिए we'll use formula tan 2 theta equals to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। 2 theta को आप π/4 पुट कर लो, पुट 2 theta is equals to π/4 tan 45 डिग्री। सो ये एक्सप्रेशन जो है ये हो जाएगा 1 is equals to 2 tan theta upon 1 minus tan square theta। This is equals to 1 minus tan square theta is equals to 2 tan theta, और ये हो जाएगा आपका tan square theta प्लस 2 tan theta। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जो फैक्टराइज नहीं होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए। सो tan theta इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac upon 2a2 minus 2 plus minus 2 root 2 upon 2. So basically you get the value minus 1 plus root 2 या minus 1 minus root 2. This is tan theta या tan 22.5 डिग्री या π/8। So आपको क्लियर है कि tan π/8 नेगेटिव तो हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो दिस इज द वैल्यू। सो इट मीन्स कि tan π/8 इस मेथड से आपने निकाला √2 minus 1 upon कुछ नहीं। सो दिस इज द आंसर, √2 minus 1। √2 is 1.414, तो इसमें से माइनस करोगे 0.41। सो दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ tan π/8। अब tan π/8 की वैल्यू अगर हमें पता है, सो वी कैन फाइंड sin, वी कैन फाइंड cos जस्ट बाय ड्राइंग अ राइट ट्रायंगल हियर एंड यूज trigonometry. So suppose this is π/8 angle, this is by 1, you can consider tan is perpendicular upon base is 1 by Pythagoras theorem we can evaluate this. Suppose this is ABC, so AC is equals to 1 plus इसका square 2 plus 1 minus 2 root 2, so basically 4 minus 2 root 2 का square root। This is AC square, so this is AC, so basically you get 4 minus 2 root 2 here। So now you can find therefore sin π/8 is equals to perpendicular upon base √2 minus 1 upon 4 minus 2 root 2। I think when I solve it, we'll get something √2 minus 1 upon 2 root 2 will take common in the third, so what we left here √2 minus 1, so we can divide this by this, so basically we get √2 minus 1 upon 2 root 2, and this thing it will be in whole root। This is the value of sin π/8।
and cos pi by 8 we can find either we use tan theta की वैल्यू sin by cos, जिसमें sin पता है तो cos आ जाएगा, और अदरवाइज वी कैन इवैल्यूएट अगेन फिर से कि cos pi by 8 विल बी 1 अपॉन दिस, और इसको रेशनलाइज वगैरह करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह से हम करेंगे। तो मुझे लगता है ये सारे एंगल आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए। एग्ज़ाम में आ सकता है ये निकालना, और आपको पता भी होना चाहिए, और अच्छी बात है कि अगर ये हमें याद रहे। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन, हाउ कैन वी फाइंड √3 cosec 20 degree minus sec 20 degree, both are 20 degree. Find this, find the value. Find the value of this expression. This is the question. So ना हमें तो पता नहीं है cosec 20 क्या है, sec 20 क्या है. So first of all, we convert this in sin and cos. So this will be √2 upon sin 20 degree minus 1 upon cos 20 degree. We'll take LCM. This is √3. So LCM हो जाएगा sin into cos 20 degree. यहाँ हो जाएगा √3 cos 20 minus sin 20. Solution है. So first of all we'll copy and then we'll write this, and we know that जब भी कभी ये situation आए कि यहाँ cos का सेम एंगल sin का सेम एंगल हो 20 डिग्री, ये 1 है ये √3 है, तो एक राइट ट्राइंगल यहाँ दिमाग में हमारे होता है 1 और √3 से ये आएगा, इसका स्क्वायर 3 और 4 का स्क्वायर रूट इज 2, तो यहाँ 2 से डिवाइड और यहाँ 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स √3/2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 sin 20 डिग्री अपॉन 2 से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, sin 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। और मुझे लगता है यहाँ भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 के बजाय यहाँ 4 कर लें, सो ये भी एक फार्मूला बन गया, और मुझे लगता है यहाँ भी एक फार्मूला बनकर आने वाला है। सो यू नो दैट दिस इज 4, और अंदर क्या आएगा वो तो बात की बात है, पहले तो इसे कर लेते हैं sin 2 थीटा, तो 20 का डबल जब करेंगे तो दिस विल बी 40 डिग्री। यहाँ मुझे साइन में लाना है, मैं साइन बनाना चाहता हूँ, तो साइन के फार्मूले में साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन भी होता है, तो √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं sin 60 डिग्री, cos 20 को तो हम बदलेंगे नहीं, दिस इज sin cos 60 इंटू sin 20। सो ये फार्मूला बन गया sin a माइनस बी 60 माइनस 20 डिग्री अपॉन sin 40 डिग्री। सो ये दोनों सेम होकर कट गए, सो आंसर इज 4। एक बार एग्जाम में आता है प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू 4, तो भी हम ऐसे ही करेंगे। आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन है आपके पास, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी प्रूव दैट, इजी सा सम है, cos 6x इज इक्वल्स टू 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos square x minus 1. We have to prove it. This is a question. So we will start from here and we will write this. It is 6x here, multiple angle है, इसको हमें single angle में convert करना है. So it's very easy proof. You will start LHS, that is cos 6x. इसको दो तरह से कर सकते हो, cos 2 into 3 या 3 into 2 एक ही चीज़ है। अगर 3x करते हो
3 into 2x we'll use formula for 3 theta. Cos 3 theta का फार्मूला होता है 4 cos cube theta. Theta is 2x here. Minus 4 cos cube theta minus 3 cos theta. 3 cos theta is 2x because cos 3 theta minus 3 cos theta. This is the formula that we are using here. Now cos 2x का फार्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि सिर्फ cos में लाना है. तो this is 4 and whole cube. cos में अगर लिखते हो आप cos 2 को तो cos 2 cos square x minus 1 minus 3 again 2 cos square x minus 1. मुझे लगता है just open it and you will get the same answer. So this is 4 times a minus b का whole cube. A cube 2 का cube is 8. a cube minus b cube minus 3a square b. तो 3a square मतलब इसका स्क्वायर. b is 1 minus 3ab square 3a 2 cos x. b square मतलब 1 ही रहेगा. a cube minus b cube minus 3a square b plus minus 3ab square plus 3ab square. जहाँ पे b स्क्वायर करते हैं वो प्लस हो जाता है. दिस इज द आइडेंटिटी. माइनस 6 cos स्क्वायर x, इसको मल्टीप्लाई कर दो प्लस 3. एट 4 जा 32 cos रेज पावर 6x माइनस, पहले इसको कर लेते हैं. 4 3 जा 12 4 जा 48 cos स्क्वायर x, इसको कर दीजिए. 3 2 जा 6 4 जा 24 cos x cos x. This is minus 4 plus 3 that is minus 1 minus 6 cos square x. ये लाइक टर्म है, इनको इकट्ठा कर दो. So this is equals to 32 cos 6 no 3a square b. 3a square यहाँ पे भी स्क्वायर हुआ था तो दिस वाज 4 और 3a square b. दिस विल बी a cube minus b cube minus 3a square b. a square b plus 3ab square. a मतलब स्क्वायर है यहाँ पे. अब सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर होगा. सो ये दोनों लाइक टर्म होंगे, ये नहीं होगा. 32 cos रेज पावर 6x माइनस 48 cos रेज पावर 4x और ये दोनों को माइनस करो तो 18 आ जाएगा. यस 18 cos स्क्वायर x की हमको लाना भी है minus 1 and that is right hand side hence pro. This is इस तरह से अगर cos 5x भी खोलने को आए तो you can express 5x को 3x plus 2x cos a plus b की आइडेंटिटी एंड खोलो. लीनियर में खोलते चले जाओ, you will get your answer. Next question. One more question I have and that is again a very good. So आपने देखा होगा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री into cos 60 डिग्री into cos 80 डिग्री is equals to 1 upon 60. ये हमको प्रूव करना है. एग्जाम में आएगा prove that this question. तो क्वेश्चन तो मैं इजीली समझा दूंगा आपको, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट आप देखें यहाँ 20 है, ये इसका डबल है और फिर ये इसका डबल है. तो जो डबल डबल वाले हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं और ये पैटर्न देंगे हमें प्रूफ. सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लो. 20 40 और 80 को जैसा कि मैंने बोला, और होता अगर तो 160 भी इसी तरह से करते. और cos 60 की वैल्यू हमें पता ही है, अभी रहने देते हैं ऐसे रखते. अब इसको देखो, ये cos का पैटर्न है. cos ऑफ एंगल
कॉस ऑफ अ डबल एंगल, कॉस ऑफ अ ट्रिपल एंगल, ऐसे होता रहेगा, डबल का डबल, डबल का डबल, 20 का 40, 40 का 80, 80 का 160, फिर उसका 320 एंड सो ऑन। अगर ये पैटर्न कभी भी मिले तो इसी एंगल पर साइन से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2 sin 20 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, और बाकी कॉपी कर लो ऐसे ही 40 डिग्री, 80 डिग्री, और ये cos 60 है, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, बार बार लिखना पड़ रहा है। cos 60 इज 1/2, तो जो आपने मल्टीप्लाई किया है इसी से डिवाइड कर लो, और अब देख सकते हो ये एक फार्मूला बन गया, यहां से यहां तक, इसे sin 40, बिकॉज sin 2 sin थीटा cos थीटा, और आप देखोगे कि अब फिर से ये वही बन गया sin 40 इंटू cos 40, हालांकि cos 80 भी है अभी, और मैं इसे 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 2 to the 4 sin 20 डिग्री। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक 2 और यहाँ लगा लो और एक 2 यहाँ लगा लो, जितनी बार आप ऊपर मल्टीप्लाई करो कोरिस्पॉन्डिंगली नीचे मल्टीप्लाई कर दो, और ये फिर से देखो एक फार्मूला फिर से बनकर तैयार। तो sin 40 का डबल sin 80 cos 80, फिर से आपको 80 80 मिल गया sin cos, और ये 8 sin 20 डिग्री, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, सो ये आ गया आपका sin 160 डिग्री, और ये आ गया 16 sin 20 डिग्री। आपको पता है ये 180 है इनका सम, एंड sin 180 माइनस थीटा sin थीटा सेम होता है, तो इसको ऐसे काट दो, बिकॉज sin थीटा और sin 180 माइनस थीटा सेम होते हैं। तो अगर ये sin थीटा है तो sin ये 180 माइनस 20 यानी 160 है, सो फाइनली यू कैन सी इट इज 1/16, और जो आपको प्रूव करना था राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो कभी भी cos के लिए ऐसे आए कि एक एंगल उसका डबल जो हो उसका डबल, फिर जो हो उसका डबल, और ये चलता रहे, तो दिस विल बी द प्लानिंग स्मॉलेस्ट एंगल के साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड कंटिन्यू। लेकिन ये साइन के लिए नहीं वैलिड है, ये सिर्फ cos के लिए वैलिड है। इस टाइप का कोई भी cos में क्वेश्चन आए, तो मैंने एक कराया, लेकिन इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो RD शर्मा में। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन। प्रूव दैट cos square x plus cos square x plus 2π/3 NCERT का क्वेश्चन है, प्लस cos square x minus 2π/3 is equals to 3/2। क्वेश्चन हुआ ये, सॉल्यूशन अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे वो ये कि cos square थीटा कैन बी रिटन 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। हर जगह cos का स्क्वायर है, ऐसे कभी cos क्यूब में भी होता तो हम इसको लीनियर में कन्वर्ट करते हैं, cos क्यूब, cos 3 थीटा के फार्मूले में cos क्यूब आता है, वहाँ से cos क्यूब निकाल कर उसको करते हैं। ऐसे cos 2 थीटा के फार्मूले में cos स्क्वायर आता है, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल कर ये करेंगे। तो अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहली लाइन आपका कॉपी होगा, ये। उसके बाद अब आप लिखना शुरू करेंगे 1 प्लस कॉस, बार बार एंगल का डबल करते रहना है, x का डबल 2x/2 प्लस 1 प्लस कॉस इसका डबल बाई 2, फिर उसका डबल 1 प्लस कॉस 2x माइनस 4π/3 बाई 2। Now the LCM will be 2 and 1 plus 1 plus 1, this is 3,
दिस इज cos 2x, और ये cos प्लस ये cos, यहाँ पे अगर आप cos c प्लस cos d का फार्मूला कर लो, मैं अगली लाइन में करूँगा, so we'll get 3 plus cos 2x plus, अब cos c plus cos d is equals to 2 cos c plus d by 2, यानी कि 2 cos, दोनों का सम यानी कि 2x plus 4 pi by 3 c plus d, d मतलब दूसरा एंगल, होल by 2 into cos c minus d by 2, जैसे यहाँ प्लस का by 2 हुआ ऐसे वो c minus d by 2, यानी कि 2x plus 2 pi by 3 में से माइनस कर दीजिए ये, सो 2x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, होल बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यू कैन सी ये दोनों कट गए, यू कैन सी 2x कट गया, तो बेसिकली आया क्या, ये 3 प्लस cos 2x plus 2 cos 2x plus 2x 4x by 2 is 2x into cos 2 pi by 3 plus 2 pi by 3 by 2, so basically 2 pi by 3, and that is we can write pi minus pi by 3 and whole divided by 2. And you know that cos of pi minus theta is minus cos theta, तो माइनस cos pi by 3, cos pi by 3 means cos 60, that is minus half, so basically this is 3 plus cos 2x plus 2 cos 2x into, यहाँ पे मुझे लिखना होगा minus cos pi by 3 because cos of pi minus theta is equals to माइनस लग जाता है, तो माइनस पीछे आएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, कर देता हूँ माइनस, और cos थीटा यानी पाई बाई 3 cos 60 is 1 by 2 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 और ये 2 कट गया, अब आप देख सकते हैं ये भी cos 2x है, माइनस का ये cos 2x, तो ये दोनों कट गए, सो बेसिकली बचा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, सो आंसर आया 3 by 2 जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, हेंस प्रूव्ड। सो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब इसमें से मैं आपको एक और क्वेश्चन समझा सकता हूँ, दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन, यू कैन सी, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन फार्मूला, एंड in my next video I will explain, I will teach trigonometrical equation, solving trigonometrical equation, general and principal solution, and that will be the last topic of trigonometry. So before that I have a question to explain. This is a very nice sum. Prove that two sin square beta plus 4 cos alpha plus beta into sin alpha sin beta plus cos twice of alpha plus beta is equals to cos 2 alpha. We have to prove this, and this is the last question of this video, I think. So see this, how can I prove it? So you can see this is cos twice of alpha plus beta, this is sin square beta, this is cos alpha plus beta into alpha beta. So either I can explain this, या तो मैं इसको खोल लूँ cos alpha plus beta और फिर से मल्टीप्लाई कर दूँ अलग अलग सारे खोल के,
या मैं कॉस अल्फा प्लस बीटा में कोई रिजल्ट ले आऊँ. So see this. So what can I do? Proof. This is the question here and this is solution. LHS first line will be copy 2 sin square beta. इसको तो कुछ कर नहीं सकते. 4 cos alpha plus beta and into sin alpha sin beta plus cos twice of alpha plus beta, cos 2 theta basically. So you can write 2 cos square alpha plus beta minus 1. So better है हम इसको एक्सपेंड करते हैं is equals to 2 sin square beta plus 4 sin alpha sin beta एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 into 2 कर लेते हैं, यहाँ फार्मूला लगा लेंगे, इसको रहने दो cos अल्फा प्लस बीटा, ये यूज हो गया 2 2 जा 4 प्लस इसको ऐसे पड़े रहने दो 2 twice of अल्फा, यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं 2 sin A sin B, तो दिस इज 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस twice of, see this 2 sin A sin B cos A minus B minus cos A plus B, this is the formula for 2 sin A sin B cos A minus B minus cos A plus B, सिर्फ इतने को मैंने लिखा, ये वाला 2 यहाँ है और ये cos अल्फा प्लस बीटा यहाँ है. यू कैन सी जब मैं इसको खोलूंगा तो स्क्वायर में आएगा cos अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे भी cos 2 थीटा का फार्मूला लगाकर खोल देते हैं. So this will be 2 cos square, 2 हट गया अल्फा प्लस बीटा माइनस 1. यू कैन सी जब इसे मैं खोलूंगा तो 2 into दिस माइनस में आएगा होल स्क्वायर, तो ये चीज इससे पूरा कट गया. तो फाइनली वी हैव 2 sin स्क्वायर बीटा प्लस 2 cos अल्फा माइनस बीटा into cos अल्फा प्लस बीटा minus 1. We have a formula here, cos A plus B into cos A minus B is equals to cos square A minus sin square B. तो 2 आप कॉमन ले सकते हो इन दोनों में, दिस इज sin स्क्वायर बीटा प्लस, पहले आप इसको देखो cos A plus B into cos A minus B, फार्मूला होता है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर B, ब्रैकेट बंद माइनस 1. So ये दोनों कट गए. So this is 2 cos square alpha minus 1 and that is again cos 2 alpha. यही हमारा राइट हैंड साइड है. So now the topic is over. इतना क्वेश्चन मुझे समझाना था. तो मेरा वीडियो 2 और वीडियो 3 अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको बेसिकली फार्मूलों पे बेस जितने भी क्वेश्चन है मैंने काफ़ी कुछ कराया. इनको देखकर आप बहुत ही अच्छी तरह से ट्रिग्नोमेट्री सीख जाओगे. और एक वीडियो और बनाऊंगा लास्ट ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन या हाउ टू फाइंड जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन. तो अच्छे से समझने के लिए आपको सारी वीडियोस देखनी होगी. ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1, ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 2 एंड दिस इज ऑफ लेक्चर 3 and one more will be lecture 4, then chapter will be finished. So thank you for watching this video and लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, आपके क्लासमेट्स को, सो दैट वो सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और समझ सके वो मैथ्स को अच्छी तरह से. थैंक यू.